तो फ्रेंड्स, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम यहाँ पर रन हो रहा है। अभी चलिए हम आपको दिखाते हैं, एक्सप्लोर कराते हैं। हियर इज लैंग्वेज लैब एंड अनिकेत संकेत from प्रयागराज संकेत निरुपमा. Good morning, sir. My name is Pragati Mishra. I am native to the city of Varanasi and I am studying in electrical engineering. प्रगति from वाराणसी. My name is Saurabh Chandoli. My branch is computer science and my aim is to become a software engineer. Yes, sir. From Baduni. Hello sir, good morning. My name is Saurabh Chauhan from Jaunpur, branch computer science and engineering, third year. myself Vimal Kumar from Jaunpur, branch computer science and engineering. Saurabh and Vimal, both are from Jaunpur. My name is Shambhavi Malaysia from Gorakhpur. Give me gas one. I'm from Varanasi. My hometown is Sonbhat. Yes. Do you know Madhupur, Sukrit? Yes. So I'm from there only. But I have not lived here. I have lived here only, you can say, till 12. After that, I have educated in Varanasi. And I have lived in Delhi, Himachal, several places. Yes. My last job as a soft skills and English trainer was there in Green Hills Engineering College, Himachal. You know, Solan, Shimla, in Himachal. So I was there. After COVID, I stopped. And right now I'm just taking some soft skills online only. Offline session, offline training just for the first time offline session after COVID. Before COVID I have conducted so many. I have been teaching English and soft skills for more than 10 years, last 10 years. And I love traveling. I love going into the lap of nature, meeting new people, exploring new things and doing little bit social work as well. And right now I'm by profession, I have one more profession, that I'm a trader in stock market. Yes, you will be aware of that. Yes. तो एक काम करो, आप लोग आगे आ जाओ, लास्ट वाले आगे आ जाओ. चलो नए तरीके से इंट्रोडक्शन सीखते हैं, करते हैं, सीखते नहीं करते हैं, थोड़ा सा विल एंजॉय. ठीक है, नॉट टेक्निकल. चलो अच्छा टेक्निकली ले लेते हैं. ठीक है. What you have to do, you have to tell your name, one thing. Second thing, you have to compare yourself with any object, whatever you find the quality similar to you, right? Just like, for example, I can say I'm a charger. How I used to charge the people when they are discharged. Okay, I put energy and quality similar to that particular object. So should we do? We will have some fun. We will enjoy. ठीक, it will be quite different. थोड़ा सा अभी तक जितने इंट्रोडक्शन किए उससे थोड़ा डिफरेंट होगा ना. Okay. So let's start from that side. Yes. Please. You have to tell your with some object that you can say light, fan, means any object. Okay, fine. It cools you. Okay, chair. People sit on you. Okay. So in this way you have to tell, comparing yourself with any object, any of the object. Okay. Some people can be wear specs. So whatever you feel. Okay, I gave you several examples. So now you are free, please. So I think along with thinking, please listen also. If you can communicate in English, then it's better. Otherwise, you can say in Hindi also. I think you will be able to communicate in English this much. इतना तो बोल सकते हैं. Vinay Kumar. Vimal Kumar. Vimal Kumar. I am like a fan, even
somebody say some work to do. When he does not stop, then until I cover, जब तक तो मैं करता रहता हूँ जब तक वो मुझे रोकेगा नहीं. ओके जब वो रोक देगा मैं रुक जाऊँ. अपने से नहीं रुकते बिल्कुल. अपने से नहीं रुकते, करना चाहते हैं करते रहेंगे. दैट्स वेरी गुड. जब तक ये खराब नहीं हो जाएगा तो वैसे मैं भी हूँ. या तो फिर पावर ना बदलो. सेम. ओके दैट्स वेरी गुड. Oh, what are your present of mind for explanation? Yes, very good. Well, thank you. Now, Sir, I need some time to think. okay, you think? Yes. People can't avoid it. It is smartphone. So I think people cannot live without you. Can't avoid me, sir. Yes, they can't avoid you. Yes. Means you are very useful person. Probably, sir. Right. Okay. Vimal fan. Yes. One need. 5 minutes, 2 minutes, 1 minute. How much? How much time is required? What? What I Yes. Eligible to was clear. Capability and ability. So what is the difference between? No. You would have forgotten, I think. भूल गए होगे. अच्छा, आप देखिए सो. Well, कुछ और भी दिया था. Skills क्या है? Skill के साथ कुछ और भी था. Soft skills and hard skills. हाँ, वो तो था ही. कुछ और भी अंडरस्टैंड बाय स्किल्स. स्किल्स को कंपेयर किए थे किसी और चीज़ से कोई. चलो स्किल्स बताओ. स्किल्स वैसे तो पहले भी ये मज़ा आ जाता थोड़ा सा एक बार डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप लोग देखते कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे क्लास में. पेन, कंप्यूटर, टीवी, स्मार्टफोन, व्हाटएवर. हाँ, कोई माइक भी है यहाँ. कोई स्पीकर भी होगा. कोई स्क्रू ड्राइवर भी होगा. Well, I should now tell. Still not able to figure out. अरे कुछ भी बता दो ना. वॉच है, वॉच बोल सकते हो, क्लॉक बोल सकते हो. यू थिंक बस यू हैव टू कंपेयर कि हाँ वो आप क्यों हो. Lots of examples I have given. कम से कम 10-20 एग्जाम्पल्स तो मैंने दे दिया भी. कुछ भी, एनीथिंग. सारे ऑब्जेक्ट्स तो क्लास में डोर बोल सकते हो. Sir, how can someone resemble to door? हाँ, तो अब वो कुछ क्वालिटी, सब क्वालिटी डोर की कुछ क्वालिटी, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी. अगर वो आपसे मैच कर रही कहीं से तो यू कैन. हो सकता है किसी के अंदर वो कुछ क्वालिटी हो जो कि डोर के अंदर क्या क्वालिटी होती है. अच्छा बताओ, डोर क्या है? फालतू होता है डोर. और Protect us from outer noises. Privacy. और लोगों को प्रोटेक्ट करता हो, चाहे वो अपने फैमिली मेंबर्स को, चाहे वो किसी को भी, फ्रेंड्स को भी. कुछ तो कहीं ना कहीं से कोई ना चीज उसकी होगी जो कि किसी के अंदर वो क्वालिटी जो होगी सिमिलर. अच्छा, ये अभी न्यू थिंग्स आपको मिला है लग रहा है. योरसेल्फ नेवर थॉट योरसेल्फ ना. चलो, बहुत सारी चीज़ें हैं नई नई क्योंकि कभी हमें भी कभी नहीं मिली. सो बोलो, जल्दी से आगे बढ़ो. हाँ, कुछ भी बोल करके बताओ. अभी इसमें आपको इससे बहुत कुछ नहीं होने वाला है. इससे कोई करियर का कोई मतलब, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला Sir, I है. know, but कुछ भी बोलो, आगे बढ़ो. पास sir, कुछ भी बोल के कैसे फिर resemble करूँ? तो यू हैव टू, वही तो करना है ना. तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो रिजेंबल कर रही होंगी ना. आपकी पर्सनैलिटी में कुछ तो क्वालिटीज होंगी जो किसी न किसी ऑब्जेक्ट से मैचिंग होंगे. भाई मैंने इतने सारे ऑब्जेक्ट्स बोल दिया. इनके अलावा अभी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं. Sir, I can, as far as I am able to think right now, I can resemble to a flower because I get hurt very soon and I also get happy very नाजुक. soon. नाजुक जिसको कहते हैं. ओके, व्हाट इज द वर्ड इन इंग्लिश? नाजुक के लिए कौन सा वर्ड है? Sensitive. Delicate, soft. Okay, so you are a flower. Very good, very nice. बहुत अच्छा. Let's clap for her. Sound heavy? A flower. Okay. Yes, now.
यार इतनी देर में कुछ भी बोलो ना, दिस टू मच। देखो अब किसी चीज़ के लिए आप अनलिमिटेड टाइम मत लो, ठीक। प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करते हुए कॉमन सेंस को यूज भी बोलो, ठीक। दैट इज नेसेसरी। ना बोलने से अच्छा कुछ भी बोल दो, बिकॉज इफ यू आर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग यू आर गोइंग टू लूज द पॉइंट्स, यू आर गोइंग टू गेट 0 पॉइंट ऑन दिस, ठीक। वॉट एवर थिंग्स आई एम आस्किंग टू यू, मे बी आई विल गिव यू सम स्कोर्स बाय द एंड ऑफ द ट्रेनिंग। तो इनडायरेक्टली मैं आपसे पूछा बोला नहीं हूँ, आई हैव नॉट टोल्ड यू, नॉट इन्फॉर्म कि इन सब पे पॉइंट्स कुछ आपको हम देंगे, बट हमें पता है, ठीक है। योर ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय मी एंड आई एम गोइंग टू गिव यू स्कोर्स ऑन एवरीथिंग, लाइक your regularity, your punctuality, your way of sitting, your way of asking the questions, your way of responding, the time you are taking in responding, everything matters. When I was conducting the online sessions, तो उसमें everything पे मार्क्स था कि whether your camera is on or off, कितने देर के लिए आपका कैमरा ऑन हो रहा है, कितने देर के लिए ऑफ हो रहा है, सब कुछ पे मार्क्स, सब पे पॉइंट्स। So you are going to get the points on these things. So don't take much time. अगर आप बीच में मान लो आप कम्युनिकेटिंग विद यू और आप बीच में किसी और के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, बात कर रहे हो थोड़ी देर तो उस पर भी आपको मार्क्स कहीं ना कहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यस Sir, I am Shweta, but I am like a medic. मेडिसिन अभी तक नया अपडेट मिला मेडिसिन में, सिर्फ एनीवन गेट्स इल सो यू कैन ओके हील, यू कैन हील देम। वेरी नाइस। एक साइड से चलते तो अच्छा रहता ना, नहीं तो फिर इसमें कोई कुछ देखना। Good morning, sir. My name is Kusum. I can compare with myself with like a tree. Like Tree. Yeah. ओके Like गुड। a tree gives sets to other. As Fruits. I always try to, as fruits also. I always try to help other person before thinking about my requirements and needs. Very nice, very nice, very good. Kusum is a tree. Okay. And what's your name? Shweta. Shweta. Shweta is a medicine. Okay, very good. Yes, you people, baki rest of the people. Different activity. This is not the. We like Which kind of bulb? Means like sun without power. solar bulb. Solar bulb without power. Okay. You Go around bulb. saying that you are a bulb. Yes. So, how are you comparing yourself with bulb? Bulb gives light. Light around. So, do you also give light to the people around you, right? Okay, very good. Yes, you. Myself Saurabh Chauhan. Saurabh Chauhan. Yes. I resemble myself. I have read different perspective about anything, Eye bad or glass. good, but I clear the thing that the fact is that मतलब जिस तरह सर आप सोचते हैं ये इस तरह से नहीं है, ये इस तरह से मतलब हार्ड हिटिंग फैक्ट जो होते हैं सर वही बोलते हैं। Okay. आई ग्लास, वो आप क्या करते हो, क्लियर विजन दिखाते हो। हाँ, क्या कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं है तो जस्ट यू मेक इट क्लियर। ओके, वेरी गुड। यस। I self with renewable sources run devices because I think I am self-endearing and self-motivated. Which device? Sir, those devices that don't require any sort of don't require. Renewable. Yes, sir. Renewable device. Sir, they require power. I don't require power to force me to do things. I am self-endearing. वो ठीक है, सेल्फ आप चल रहे हो, ठीक है, हाँ. बट But like solar run devices, they don't require the power. और रनिंग यू डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एनर्जी, Yes, sir. यू डोंट रिक्वायर एनर्जी। So I don't Solar require any. also requires energy. So I don't require any sort of external force to push me to do things. I am self-endearing and self-motivated. लेकिन रिन्यूएबल डिवाइस ये नहीं समझ में आ रहा मुझे कि सर उसको बाहर के पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो खुद में सफिशिएंट है टू रन डिवाइसेस। अच्छा, ठीक है। मीन्स सेल्फ मोटिवेटेड सेल्फ मोटिवेटेड तो ठीक है, फॉर डू एनी वर्क। ऐसा कौन सा डिवाइस होता है?
एनर्जी की जरूरत होती है सन से लेता है ना। कहने का मतलब है रीन्यूएबल एनर्जी। हाँ, जैसे पहले से जैसे कोयला वगैरह हैं वो उस टाइप की एनर्जी नहीं, मतलब जैसे सूर्य से जो प्राप्त हो रहे हैं, जैसे समुद्र से जो प्राप्त हो रहे हैं, हाँ नेचुरली रिसोर्सेज से रीन्यूएबल। एनर्जी हो, जैसे विंड क्या है, विंड मिल को इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, विंड हवा चलिए तो अब चलेगा, तो वैसे आप बबल Because I think I'm much more flexible. I can adapt to things easily. But once it extend like its limit, it doesn't regain its shape. So I think once I cross my limit, I don't connect with people that much. So like रबर की एक लिमिट होती है, अगर वो उसको क्रॉस करता है उसके बाद अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता है। इलास्टिसिटी सर तो मतलब पहले थोड़ा सा खींचोगे तो ठीक है। ठीक है, फिर अपने पोजीशन में आ जाओगे, लेकिन जब ज़्यादा खींचोगे तो फिर अपने पोजीशन में नहीं आ सकते। इलास्टिसिटी आपसे प्रत्यास्थता हिंदी में, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता। उससे हट दोनों को होगा सर, उससे हट दोनों का होगा, हट दोनों को होगा उससे। Sir, the vehicle because I like to travel. Vehicle, sir. Vehicle, which vehicle? Sir, any vehicle. I like to travel. Two-wheeler, four-wheeler, what? Sir, any kind of. Just I like to explore new things and travel places. So means vehicle का काम ये होता है उसको ड्राइव करने वाला कोई होता है Sir, तब money. हो जाता Sir, है। money. Automatic, sir. Money, sir, उसको ड्राइव करेगा। अगर मनी हुआ तो ही तो जा पाएगा। कहीं वो तो ठीक है, फॉर पेट्रोल आपका भी देगा, बट ड्राइव करने के लिए आपको कोई ड्राइवर का मतलब क्या हुआ सकते कि यू आर ए ड्राइवर लेस कार, लेकिन फिर भी देखो टेस्ला, हाँ वो अलग चीज़ है। आप कहना ये चाह रहे हो कि मैं मतलब मूवेबल, आई एम नॉट स्टैटिक, यू वांट टू से दैट आई एम डायनेमिक, मैं मूव करना पसंद करती हूँ, आई एम नॉट स्टैटिक, मैं एक जगह स्थिर रहना नहीं पसंद करती हूँ, ये कहना चाहते हो। तो इस क्वालिटी के लिए अगर आप व्हीकल यूज कर रहे हैं तो व्हीकल हमें नहीं लग रहा है कि व्हीकल के अंदर वो क्वालिटी होती है वो मूव करता है आपके से। व्हीकल तो वो कह सकते हो जब अगर डिफरेंट प्लेसेस पे जाता है और मैं अच्छा आपको अलग जगहों पे जाना है तो जब कोई ले जाएगा तब चलो ठीक है, ओके गुड। निधि ना, निधि ड्राइवरलेस कार, ओके गुड। बट कहीं ना कहीं से उसको रिमोट से या कुछ तो चाहिए ना, ठीक है जहाँ सेट कर देंगे वहाँ चला जाएंगे ये, ओके वेल। can easily adapt to the emotion when the people are around me. When they are when they are happy, I can be one of them, and when they are sad, I can box of colors. तो डिफरेंट कलर यहाँ जैसे येलो ग्रीन सारे कलर I can compare myself with because I think I'm a good listener and I can. So I don't know. I'm doing a correct comparison, but What's the property of mic? Mic की क्या property है? you can speak. Amplifier is amplifier. Mic is useful. माइक आई थिंक क्या करता है, रिसीव करता है Yeah. और उसको क्या करता है, कन्वर्ट भी करता है। It just receives, then there is an amplifier which amplifies, and then there is a speaker. If there is a speaker, then. So I'm not that. I don't tell anybody's secrets to anyone. तो आपकी प्रॉपर्टी जो है माइक से मैच कर रही है, I just got it. उसको अगर आप किस संदर्भ में देखते हो आप इस बात को, अगर हम इसको तो इन विच वे डू यू थिंक इट, कैसे आप इसको जस्टिफाई करोगे, हाउ विल यू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट? अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपको उसको जस्टिफाई करना है, हाउ
जैसे फ्लावर है तो उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ बहुत नाजुक है, कोई छुआ तो फिर मुरझा जाएगी। हाँ। It needs very less effort to bloom. हाँ। आप थोड़ा पानी दो, थोड़ा धूप में रखो and it will bloom. Okay. तो वैसे ही आपको भी उसको जस्टिफाई करो, हाउ आर यू स्पीकर, हाउ Somebody wants to share something or somebody wants to tell something. When I'm a good listener, I listen to them without giving my opinions on it or interfering with them. Yeah, that's what I mean. सर मेरा तो स्मार्टफोन स्मार्टफोन आप Yadav, I can compare myself with a joker. शुक्र जोकर, Yes sir. तो जोकर से कैसे जस्टिफाई सर करेंगे? एक्चुअली क्या होता है कि ज़्यादातर केसेस में आज के डेट में लोग सैड होते हैं, उनको इंटरनल हैप्पीनेस मिलती नहीं है, आप क्या करते हो? लोगों को हंसाते हैं सर। एंटरटेन करते हो। यस सर। सर मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज है, कॉमेडी करते हैं, डांस करते हैं सर। आज जोकर पहली बार ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। तो ऑब्जेक्ट नहीं हुआ सर, तो एक तो सर एक नाउन तो हुआ ना, एक नेम तो है, एक बिहेवियर तो है सर। You have to compare yourself with objects. डिवाइस से कंपेयर करना। You have to compare yourself with non-living objects. बोलते हैं कि सर अपने आप को हमेशा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें। अभी के सर लिए अगर हमारे अंदर कुछ बिहेवियर है तो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। for some time, if you have to compare yourself with non-living object, then with which object can you compare yourself? Oxygen. ऑक्सीजन तो सबके लिए जरूरी है, तो आप सबके लिए जरूरी हो। सर ज़्यादातर लोग की जरूरत पड़ जाती है। सबको आपकी जरूरत पड़ती है, क्लास में भी सबको इनकी जरूरत पड़ती है। हाँ सर पढ़ती है मतलब So my name is Shivansa. I compare myself with pen. समझ में नहीं आती। With pen. Because pen, without pen, people not report. अच्छा पेन, Yes sir. So ठीक है। without pen, not report. तो पेन की प्रॉपर्टीज क्या होती है? लिखना। Yes sir. तो आपकी क्या कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी क्वालिटी है जो उससे रिजेबल कर रही है, मैचिंग कर रही है? Sir, ये तो क्या लिखने की मतलब क्या आप लिखते हो? sir anything, anything. तो आप कह सकते हैं यू आर ए राइटर, पोएट, वो अलग ही है, लेकिन पेन से कैसे कंपेयर कर रहे हैं? Without pen, sir, not written. आप तो बिना पेन के भी लिख सकते हैं, Yes sir. Yes से sir. लिख सकते हैं, मोबाइल में Yes sir. कीपैड से लिख सकते हैं। तो पेन की कौन सी प्रॉपर्टी आपसे रिजेबल हो रही है? चलो ठीक है, मान लेते हैं सीजर पेन, राइट? मोस्टली कह सकते हो आपकी, आप हमेशा पढ़ने लिखने के लिए बने हो आप, हाँ? चलो ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट। Sir, my name is Neha Pandey. I am comparing myself with the water. वाटर, Yes. पानी, Yes. जिधर जगह मिला उधर भाग गए। Situation के हिसाब से काम। आप आ जाओगे। Yes. यू आर नॉट स्टैटिक। Yes. अच्छा, कहीं हद तक ठीक है, बह जाना एक तरफ से कहीं कुछ हद तक ठीक भी है। और पानी की एक और भी प्रॉपर्टी है कि सबके लिए जरूरी शेपलेस होता है। आपको जिस माहौल में जिस जगह रख दें उसके हिसाब से आप ढल जाओगे। जिस भी बर्तन में आपको डाल दें दिया जाए, आप उसका शेप ले लोगे। इस क्लास में बैठा दिया गया, एडजस्ट कर लोगे, गाँव में भेज दिया गया तो वहाँ पे भी मैनेज कर लेंगे। वेरी नाइस वाटर। Yes. आप बोल सकते हो क्या था आपका ऑब्जेक्ट? Tree. ट्री। एंड नेम? Kusum. Compare myself with diary. I can keep all डायरी, Yes. पुष्पलता डायरी। डायरी की कौन सी प्रॉपर्टीज है? Sir, I can keep all secrets and often. अच्छा, तो आप सीक्रेट के बारे में विच सीक्रेट डू यू हैव?
चलो सीक्रेट से एक बात और एक चीज आया, बाद में कराएंगे हम. सो व्हाट काइंड ऑफ सीक्रेट्स डू यू कीप? Not share. मतलब आपके पास बहुत सारे राज sir. रखते हो. ओके गुड. पुष्पलता ना, डायरी, ठीक है, अच्छी प्रॉपर्टी. यस. अच्छा हाँ, आप तो मेडिसिन हो ना, क्या नाम है? श्वेता मेडिसिन. गुड. खुली किताब. तो आपकी जिंदगी में कुछ है? मतलब कोई भी रीड कर सकता है, सब कुछ ओपन है. वेरी गुड. आशीष ना? My name is Vikas Kumar. I compare myself machine. मशीन. Sir, NBD में तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी मैच कर रही है? ऐसे मशीन का काम, उसको ये काम दो वो करती रहती है. हाँ. ऐसे ही मैं एक काम करता हूँ, एक काम करता रहता हूँ, बस अपने हिसाब से. जैसे कि मुझे मूवी देखूँगा और पढ़ूँगा तो मतलब आप इमोशनलेस हो. हाँ. एक काम करता रहता हूँ मशीन के साथ. इमोशंस नहीं है, खुद अपनी इमोशंस नहीं है, मशीनरी एकदम हो. अच्छा, ये ठीक है कहीं से? चलो ठीक है, गुड. वास्तव में इमोशनलेस हो लाइफ में कि ऐसे बोल दिए अभी? मैं जो काम करता हूँ करता ही रहता हूँ. जैसे मुझे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, अगर मूवी देखनी है तो मूवी देखनी है लगती है. एक काम को ऐसे ही करना है लगातार भी. एक मुझे कोई नहीं, वो तो ठीक है, कंसिस्टेंसी. आप जो चीज़ करोगे तो उसको करते रहोगे. अगर घूमना चालू कर दिए तो फिर घूमते ही घूमना वाला क्या डिपेंड करता है ना. जो मैं मशीन को काम मिलता है ना, प्रॉपर जैसे कीबोर्ड काम है, कीबोर्ड काम है जो करना है, उसकी वजह से एक काम करता है. खराब भी हो जाते हो कभी? डॉक्टर के पास जाते हैं ना. अच्छा ठीक है, गुड. Myself Mahan Kumar Moria, and I can compare myself, sir, just desktop. डेस्कटॉप. लैपटॉप के जमाने में डेस्कटॉप क्या हो? So if you give some input, then I am able to. तो आप आउटपुट दे दोगे. जस्ट लाइक मशीन ये. तो डेस्कटॉप, अच्छा ठीक है. हाँ, मतलब उसमें भी अभी पुराने जमाने वाला. नहीं सर. तो फिर लैपटॉप क्यों नहीं बोल रहे, डेस्कटॉप क्यों बोल रहे हैं? Laptop या desktop, you can say. तो मतलब आप लैपटॉप. कंप्यूटर बोलो फिर, या लैपटॉप. ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड प्रॉपर्टी. ठीक है, आपको इनपुट जो मिलेगा, जैसा मिलेगा वैसा आप आउटपुट निकाल करके ले लोगे, राइट? कैलकुलेशन फास्ट करोगे ना, प्रोसेसिंग. Yes sir. Yes, sir. If you give some input, then I will try to do. चलो, ओके, वेरी गुड. थैंक यू. सिट डाउन. सो पीपल, वी फाउंड लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक, तो आप लोग को कैसा लगा? इतने ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं, इतने सारे लोगों में आपने इतने सारे ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर, इससे क्या समझ में आ रहा है? क्या इससे कुछ समझा? कुछ मतलब माइंड में कुछ चीज़ें क्या आया? क्वालिटी अलग अलग है. हाँ, और क्या सीखे इससे? हमने अपने आप को अगर किसी ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या इससे सीखेंगे? क्या लर्निंग क्या हुई? बताओ. कुछ तो हुई होगी, कुछ इससे क्या चीज़ आया? खाली बस मजा आया सुन करके कि हाँ ये फैन है, ये फ्लावर है, ये मेडिसिन है, ये बस खाली मजा आया? कुछ और, कुछ तो लर्निंग होना चाहिए ना, कुछ नहीं. Everything resemble each other in some or the other way. हमारे अंदर मतलब कुछ न कुछ क्वालिटीज हैं जो कि हम अपने नॉर्मल लाइफ में जिन चीज़ों को देख रहे हैं उसमें भी हर चीज़ों में कुछ न कुछ क्वालिटीज हैं. हर चीज़ किसी न किसी चीज़ के लिए यूज हो रहा है, कुछ न कुछ क्वालिटी. इंसान के अंदर में भी कुछ न कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ न कुछ स्पेशल क्वालिटी. इस एक्टिविटी का पर्पज क्या था? टू आइडेंटिफाई. ठीक है, जस्ट टू थिंक एंड आइडेंटिफाई आवर प्रॉपर्टीज. व्हाट थिंग Qualities. आइडेंटिफाई? अपनी प्रॉपर्टीज या अपनी क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करना. ओके, थैंक यू. ठीक, इस एक्टिविटी का ये पर्पस था, अपने अंदर की कुछ प्रॉपर्टीज को, कुछ क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करना, सोचना और उसको देखना कि हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज या कौन सी प्रॉपर्टीज हैं. वेल, सो नाउ लेट्स कम ऑन द टॉपिक
हम लोग आते हैं सॉफ्ट स्किल्स पे। यस्टरडे वी हैड टॉक्ड अबाउट द स्किल्स। स्किल्स में हम लोग सॉफ्ट स्किल्स एंड हाँ चर्चा एक बात कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। व्हाट इज स्किल्स कल हम लोगों ने किया था ना, यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड व्हाट इज स्किल्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्किल्स। तो आप में से कौन बताएगा? जो बता सकता है रेज योर हैंड्स। तो भी हैंड रेज करेगा उससे नहीं पूछूंगा मैं, जब उसमें से पूछूंगा। तो चलो कोई बता दो। यस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्किल्स? यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड। इससे जो काम हमें अच्छे से आ रहा है वो जो काम हमें अच्छे से आ में स्किल्ड है। लेकिन ये स्किल क्या होती है? व्हाट इज स्किल? व्हाट डू यू मीन बाय स्किल? जैसे एक क्वालिफिकेशन होता है, स्किल्स होती है। इंटरव्यू में दो चीज़ें देखी जाती हैं, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो तो पहले चेक कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद आपके अंदर स्किल्स कितना है वो देखा जाता है मेनली। तो स्किल क्या आ रहा है, जैसे हमें बहुत लोगों को जैसे कोडिंग आती है तो उनकी वो स्किल हो गई, और सिंगिंग। अच्छा चलो मान लेते हैं, ठीक है, कोडिंग आती है किसी को, तो आप ये बताओ, एक मिनट बैठ जाओ, टाटा के खड़े मत रहो। ये बताओ आप कोडिंग और किसी को नहीं आती है, तो जिसको कोडिंग नहीं आती है वो स्किल्ड है या नहीं है? अब ये बताओ, हम ये बोलेंगे कि इसके अंदर कोडिंग की स्किल है या कोडिंग का नॉलेज है? नॉलेज बोलेंगे ना, ये तो नहीं बोलेंगे कि इसके अंदर कोडिंग की स्किल्स नहीं है। जो हमारे अंदर अपना खुद का टैलेंट। देखो नॉलेज एंड स्किल्स, मुझे जहाँ तक लगता है कि बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। नॉलेज एंड स्किल्स ये दोनों अलग चीज़ें हैं। नॉलेज आप पढ़ करके भी कहीं से गेन कर सकते हो, ठीक। जैसे हमें मतलब ये मिलाएंगे, ये दो ऑब्जेक्ट, दो चीज़ मिलाएंगे, ये केमिकल, तो ये बन जाएगा। ये क्या है, नॉलेज है कि स्किल्स है? ये नॉलेज है या स्किल है? ये सिंपल नॉलेज है, वो आपने पढ़ लिया और वो आपने पढ़ करके ऐसा किया, मिलाएंगे वो केमिकल तो ये बन जाएगा, ठीक है। और स्किल मान लो जैसे साइकिल चलाना, कार चलाना, ड्राइव करना, कुछ भी, उसमें भी पता है कि हम गाड़ी में मतलब चाबी लगाएंगे, घुमाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम ऐसे चलाएंगे तो चल जाएगा। या तैरना हम कर सकते हैं, ठीक है, कि हम पानी में जाएंगे, हाथ पैर ऐसे करेंगे तो तैरने लगेंगे, ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि ये जो मैंने बताया तैरने का या साइकिल चलाने का या इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, ये नॉलेज है या स्किल है? क्या ये सिर्फ आप Knowledge can be theoretical and skill is practical. हाँ, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। जहाँ तक मान लो कि अगर आपने कोडिंग की बात कहा या कुछ भी चीज़ और बनाने के लिए, हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें कहीं नॉलेज इन्वॉल्व है, और स्किल्स उसमें जब आप थोड़ा उसमें प्रैक्टिस करके उसमें थोड़ी महारत हासिल करते हो। सर इसका थोड़ा प्रोफेशनल बनाता है और नॉलेज हमें सिर्फ बनाता है कि हाँ हमें आ रहा है। अच्छा ये बताओ, जैसे रोटी बनाना या हम खाना बनाना कर सकते हैं, लेकिन रोटी बनाना इसलिए कहें क्योंकि रोटी बनाने में जब तक आप स्किल्ड नहीं होते हो, अच्छी रोटी नहीं बनती। चाहे कितना भी आप नॉलेज ले लो, बुक से पढ़ करके क्या रोटी बना लोगे अच्छी? जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं बनाओ, 10 रोटी नहीं बनाओ, 10 बार नहीं बनाओ, तब तक आप अच्छी गोल रोटी या उसको अच्छी से फुली हुई रोटी नहीं बना सकते। चाहे कितना भी आप बुक पढ़ लो, आप 100 बुक भी पढ़ लो रोटी बनाने के लिए की विधि, उसके बाद भी आप रोटी बनाने जाओगे तो शायद आप अच्छी रोटी नहीं बना सकते हो, ठीक है, जब तक कि आप प्रैक्टिकली उसको बार बार ना किए रहो, किसी की चाहे गाइडेंस में, चाहे बिना गाइडेंस के भी, खुद से भी आप ये अगर बनाए, कुछ खराब हुआ, फिर बनाए, फिर आपने बुक भी पढ़ा, देखा, फिर बनाते शायद कुछ दिन में आप उसमें स्किल्ड हो जाओगे। फिर आपको कहा जाएगा कि ये इस चीज़ में स्किल्ड है। स्किल की हिंदी वर्ड है निपुण, निपुणता। तो निपुणता कैसे आती है? प्रैक्टिस। और नॉलेज कहाँ से आता है? बहुत सारे सोर्सेज हैं नॉलेज के, आप ऑब्जर्वेशन, रीडिंग, ऑब्जर्वेशन से भी आता है, पढ़ने से भी आता है, या किसी को ने आपको बता दिया तो वहाँ से भी आपको आ सकता है। तो देयर कैन बी सेवरल सोर्स ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज इज डिफरेंट एंड स्किल्स इज डिफरेंट, ठीक।
तो हम यहाँ बात कर रहे थे किस चीज़ की, सॉफ्ट स्किल्स की। तो अब यहाँ पे कुछ क्लियर हुआ स्किल क्या होता है। एंड इंटरव्यूज में आपकी स्किल्स देखी जाती है ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हम होता क्या है, और हम सॉफ्ट स्किल्स की बात भी कर लेते हैं। ठीक, कभी भी कुछ भी चीज़ जब भी सीखिए तो उसको पहले वो क्या है ये चीज़ जल्दी, इसको पहले आप उस चीज़ के डीप में जाइए, फिर उसके बाद आप उसकी अदर प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। तो अगर सॉफ्ट स्किल्स के बारे में ज़्यादा समझना, तो सॉफ्ट स्किल्स पहले होता क्या है, फिर स्किल्स पहले, सबसे पहले तो स्किल क्या होता है, फिर सॉफ्ट या हार्ड बाद में आएगा। ठीक है, जैसे मतलब मैंने कहीं सुना था, किसी ने बोला था कि ये पेन नहीं है, ये तो क्या है, डॉट पेन है। इसको मान लेते हैं, कहते हैं कि ये पेन नहीं है, ये डॉट पेन है। तो आप बताओ कि ये पेन है कि डॉट पेन है? पहले वो पेन होगा तब तो वो डॉट पेन होगा या इंक पेन होगा या कोई भी पेन होगा, वो बाद में ये चीज आया था शायद कि किसी ने बोला कि कोई वर्ड, क्योंकि ये वर्ब नहीं है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। किसी फ्रेंड ने बोला, इंग्लिश में किसी विद्वान ने बोला कि ये तो वर्ब नहीं है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो वो हेल्पिंग वर्ब तभी होगा जब वो वर्ब होगा ना। तो अगर आप हेल्पिंग की हम बात कर लेते तो स्किल क्या है, एक क्वालिटी, एक गुण। ठीक है, कह सकते हैं स्किल को एक प्रकार की क्वालिटी है। वो कहाँ से आती है, कैसे आती है, कुछ प्रैक्टिस से आती है, कुछ सीखने से आती है, जिसको कि कोई गाइड, कोई मेंटर, कोई ट्रेनर, कोई टीचर वो आपको सिखाते हैं। अच्छा, टीचर और ट्रेनर दो वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे एलिजिबिलिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, वैसे टीचर, ट्रेनर। अब इन दोनों में भी कुछ डिफरेंस होता है या सेम होता है? टीचर और ट्रेनर दोनों सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? सर ट्रेनर आपको एक स्किल सिखा सकता है, लेकिन नॉलेज सिखाता है टीचर। टीचर क्या करते हैं, आपको नॉलेज देते हैं, और ट्रेनर क्या करते हैं, आपको स्किल्स सिखाते हैं। मोस्टली आप देखते होंगे जो लाइफ स्किल्स या कोई भी चीज़ें, कम्युनिकेशन स्किल्स जो भी लोग सिखाने वाले होते हैं उनको ट्रेनर बोलते हैं। जो होते हैं उनको मैथ्स, कभी मैथ्स के ट्रेनर सुने हो आपने, क्या आपको फार्मूला बता रहे हैं वो लिख दें। साइंस के टीचर, हिस्ट्री के टीचर, कोई हिस्ट्री के ट्रेनर नहीं सुना होगा, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स के ट्रेनर होते हैं। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग के ट्रेनर होते हैं। स्किल्स, ठीक, स्किल्स को आपको क्या करना होता है, ट्रेन करना होता है। उसके लिए अगर आपके पास कोई ट्रेनर है, दे कैन गाइड यू, दे कैन हेल्प यू, और उसमें आपको सीखना होता है विद द हेल्प ऑफ दोज ट्रेनर। ठीक, तो स्किल्स की बात कर रहे हैं। स्किल्स समझ में आ रहा होगा कि स्किल्स कुछ क्वालिटीज होती है जिसको हम प्रैक्टिस कर करके निपुणता को हासिल करते हैं, विद गेन। ठीक, तो स्किल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। स्किल्स क्या होता है, स्किल्स आप क्या समझते हो? स्किल्स कुछ क्वालिटीज होती है जो थोड़ा नॉलेज से डिफरेंट होता है, मे बी कि उसमें नॉलेज भी इन्वॉल्व होता है। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि स्किल्स में नॉलेज नहीं होता, नॉलेज एकदम अलग है, स्किल्स अलग है, ये नहीं कर सकते हैं। स्किल्स में नॉलेज विल बी इन्वॉल्व, लेकिन सिर्फ नॉलेज से ही नहीं होता, नॉलेज के अलावा कुछ और भी चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि प्रैक्टिस से शायद आती हैं। ठीक, तो वो चीज़ें होती हैं स्किल्स। अब स्किल्स में दो तरीके की स्किल्स होती हैं, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। अब हमें बताओ कितने लोग इससे परिचित हैं, हार्ड स्किल्स क्या होता है और सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है? कौन बता सकता है? ये कॉमन चीज़ है, आई थिंक यू ऑल मस्ट नो इट। आप सभी को पता होना चाहिए कि हार्ड स्किल्स क्या होती है, सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है। कौन बताएगा? अगर आप लोग में से कोई बता सकता है तो बढ़िया रहेगा। कोई बताएगा? नहीं बताओगे? ये क्वेश्चन सबसे पूछो, देखो कोई बताए। कम्युनिकेशन स्किल्स होती है हमारी बात करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, और ये सारी चीज़ें हमारी सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं। हार्ड स्किल्स जैसे अगर किसी को स्विमिंग आती है, कोई गेम खेलने में स्किल है, ये सारी हार्ड स्किल्स। Soft skills reflects our personality and hard skills reflects our talent. टैलेंट, इंडिया गॉट टैलेंट। अच्छा ये बताओ, डांस, ठीक है, ये क्या है, हार्ड स्किल है या सॉफ्ट स्किल?
साइकिल चलाना या बाइक चलाना या कार चलाना, ये क्या है? कंप्यूटर चलाना या बनाना भी मान लो, ठीक है, हार्ड स्किल्स है। ठीक है, कोई भी चीज़ को खोल खाल करके फिर से उसको बना डालना या उसको रीबिल्ड कर देना, रीशेप कर देना, ये सब कौन सी स्किल्स हैं? अब हार्ड स्किल्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये तो बातचीत से अपने किसी को प्रभावित कर लेना, टू इम्प्रेस ए गर्ल या बॉय को, ये कौन सी स्किल्स हैं? हार्ड स्किल्स। अपने किसी प्रोडक्ट को किसी को खरीदने के लिए तुरंत क्या करना, कन्विंस करना। अपनी बात कौन सी स्किल्स हैं? किसी के ऊपर अपना एक अच्छा इम्प्रेशन छोड़ देना, किसी को मोहित कर लेना। मोहित करना मतलब उसका निगेटिव सेंस वो शायद कुछ ऐसा हिप्नोटाइज जिसको बोलते हैं ना, वो मेरा मतलब नहीं था। उसके लिए कौन सा वर्ड यूज? इम्प्रेशन, अटेंशन खींचना अपनी तरफ। टू ड्रा द अटेंशन, अट्रैक्ट, इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंसर, आजकल इन्फ्लुएंस वर्ड बहुत चला है, इन्फ्लुएंस करना। तो ये कौन सी स्किल्स हैं? सॉफ्ट स्किल्स। तो ऐसी दोनों चीज़ों में हम लोगों ने कंपेयर करके इससे क्या हो रहा है, चीज़ें क्लियर होती जा रही है। क्लियर होने के बाद अब इसमें से स्किल्स में क्या हार्ड स्किल्स हो गया, क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स हो रहे हैं। तो हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स ये दोनों हमें लगता है क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक बार ज़रा ये देख लेते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो आप लोग कुछ प्रॉपर्टी बताओ सॉफ्ट स्किल्स में। एक हो गया सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि कुछ भी आप करोगे तो कम्युनिकेशन के माध्यम से ही करोगे। विदाउट कम्युनिकेशन बहुत कम ही चीज़ है जो कि शायद आप इशारों से कर लो। प्रेजेंटेशन स्किल्स, चलो। और पब्लिक स्पीकिंग हो गया, और आर्टिकल राइटिंग, हाँ हाँ, परसुएशन स्किल्स, ठीक है। और सर कैन यू एक्सप्लेन अबाउट नेगोशिएशन? हाँ हाँ, नेगोशिएशन भी एक्सप्लेन करेंगे, हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे जितनी चीज़ें बोल रहे हैं। ओके, थैंक यू। अभी फर्स्ट लेक्चर में ब्रिंग द थिंग्स व्हाट थिंग्स कम अंडर द सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर क्या क्या आएंगी, एक बार हम ये सारी चीज़ों को पहले ले आए, पहले फिर एक एक करके डील भी करेंगे, ठीक है। देखो ऐसे क्या होगा ना, हम लोग ऐसे ही बस इंटरेक्ट करते चलेंगे। हम बहुत थियरी में विश्वास नहीं करते हैं कि हम आपको कुछ चीज़ें लिखवाएं फिर आप उसको नोट करें फिर उसी में रह जाए, नहीं। ऐसे हम प्रैक्टिकली बात करते हुए चीज़ें सीखते चलेंगे। और कौन सी स्किल्स हैं जिसको हम कर सकते हैं? बार्गेनिंग स्किल, जिसको नेगोशिएशन स्किल्स जो आपने बोला उसको ही एक, उसके लिए एक वर्ड बार्गेनिंग स्किल्स भी कर सकते हैं। बार्गेनिंग थोड़ा निगेटिव स्किल्स है, निगेटिव मतलब टर्म है, या निगेटिव नहीं भी कहेंगे तो एक नेगोशिएशन थोड़ा एक स्टैंडर्ड वर्ड है, हाँ, प्रोफेशनल वर्ड है। और कौन सी स्किल्स आएंगी? ठीक है, स्पीच भी आ जाएंगी, और बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज भी। स्किल्स बची हैं, लीडरशिप स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यस, वेरी गुड। क्या बोली हो? इंटरपर्सनल स्किल्स। और अभी भी और भी बहुत सारी हैं। नहीं देखो, बहुत अगर मैक्सिमम होगा गलत। इफेक्टिव इंटेलिजेंसी, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी हम कर सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स। राइटिंग स्किल्स तो हार्ड स्किल्स में आएगा मुझे लगता है। अगर आप सॉफ्ट स्किल्स की बात में कर रहे हो तो राइटिंग तो सॉफ्ट स्किल्स में नहीं आना चाहिए, हार्ड स्किल्स में आएगा राइटिंग। हाँ, लेकिन हार्ड स्किल्स में आएगा राइटिंग। और कोई सॉफ्ट स्किल्स में और कोई स्किल्स बच रही हैं? अभी बहुत सारी स्किल्स बच रही हैं। क्या क्या? टीम वर्क, कौन सी स्किल्स है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, कौन सी स्किल्स है? तो ऐसे ही और कुछ, और कोई स्किल्स?
बहुत सारी स्किल्स ऐसी ऐसी ढूंढोगे देखोगे तो कुछ ना कुछ और स्किल्स होंगी। जितनी भी लोग बात किए हैं ये सारे सॉफ्ट स्किल्स हैं, ठीक है। इसमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा और सबसे ज़्यादा यूज्ड है कम्युनिकेशन स्किल्स, जो हम सभी लोगों के पास है ना कि नहीं है? अच्छा, जितनी स्किल्स की हम लोगों ने बात किया, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो इंटरपर्सनल स्किल्स हो, चाहे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हो, चाहे कन्विंसिंग स्किल्स हो, चाहे नेगोशिएशन स्किल्स हो, चाहे टीम मैनेजमेंट हो, टाइम मैनेजमेंट हो, या हाँ टाइम मैनेजमेंट नहीं है एक स्किल्स आपको सीखनी है। और बताओ और कौन सी स्किल्स नहीं है? कौन सी और कौन सी स्किल्स नहीं है, बस ये बताओ मुझे। अच्छा, एक स्किल और क्या गया? सेलिंग स्किल्स। सेलिंग स्किल्स भी एक स्किल ही है ना। सेलिंग स्किल्स और नेगोशिएशन स्किल्स दोनों थोड़ा अलग है। नेगोशिएशन स्किल्स का आप यूज कर सकते हो जहाँ जरूर है कि हाँ जहाँ सेल करना हो। जैसे मान लो कि आप किसी से आप कोई डील कर रहे हो तो उसमें जरूरी है कि सेल ही हो, ठीक। सेलिंग स्किल्स एक डिफरेंट स्किल्स है। और अगर आप देखो तो आज की डेट में जॉब के लिए सेलिंग स्किल्स, अगर आपके अंदर सेलिंग स्किल्स अच्छी है तो जॉब्स ज़्यादातर सेल्स की फील्ड में ही है। ज़्यादातर जॉब्स 80% जॉब्स आप कर सकते हो सेल्स की फील्ड में। कुछ भी चीज़ें सेल ही करनी है। अगर सेलिंग स्किल्स नहीं है तो आपके बाकी सारे जो भी स्किल्स हैं, अगर आप उनको सेल नहीं कर पाओगे, मतलब सेल करने का मतलब ये है कि आप उसको अगर यूटिलाइज कर रहे हो, दे रहे हो कहीं किसी को, तो उसके बदले में आपको क्या चाहिए? मनी, पैसा चाहिए, ठीक। हम भी आकर के अगर कुछ भी यहाँ पे बोल रहे हैं तो हमें भी क्या चाहिए? पैसा नहीं देंगे तो आएंगे हम? शायद नहीं, इंटरेस्ट, लेकिन हमेशा शायद नहीं करेंगे। अगर हमें उससे पैसा भी चीज़ करने का तो शायद आप उसको थोड़े समय के लिए करोगे, लेकिन अगर आपको उसी में आपको उसी फील्ड में कोई काम मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए, पैसा ना मिले, करोगे? पार्ट टाइम में भी, पार्ट टाइम में कभी कहा थोड़े समय के लिए कर सकते हो, कुछ दिन। हमेशा करोगे? साल भर करोगे? 6 महीना करोगे? 1 महीना भी शायद नहीं करोगे। तो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और वो कहाँ से आता है? जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल किया जाता है, मनी तो तभी आता है इधर भी सेल एनी प्रोडक्ट और सर्विस। अभी हम जैसे क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विस, वी कैन से, मतलब हमारी जो कंपनी है, जिस कंपनी के थ्रू हम आए हैं, दैट कंपनी इज प्रोवाइडिंग सम सर्विस। अभी सर आप आइडिया को अपने सेल करना चाह रहे हैं। हाँ, दिस इज एकदम करेक्ट वे। हम कर चुके हैं। यस सर। यहाँ पे तो अभी हम नहीं करना चाह रहे। हम फॉर एक लर्निंग तरीके से कर पर्पस सकते हो कि जिस कंपनी के थ्रू मैं आया हूँ तो मैंने उनको अपने स्किल्स, अपने टैलेंट को कुछ थोड़ा सा सेल किया होगा। यस सर। देन दे वुड हैव हायर्ड मी, दे वुड हैव पेड मी फॉर दैट। तो मैंने उनको कन्विंस किया होगा कि यस आई डिजर्व, आई कैन डू, यू नीड मी। मैंने अपनी नीड क्रिएट की होगी, मैंने अपने स्किल्स को सेल किया होगा, उन्होंने खरीदा होगा, परचेज किया होगा, उसके लिए पे किया होगा। तो ये सेलिंग स्किल बड़ी ज़रूरी है। अगर आपके अंदर सेलिंग स्किल्स आ गई तो यू कैन बी सक्सेसफुल इन एनी फील्ड, कुछ भी आप करो। और अगर ये स्किल्स नहीं है तो बहुत सारी स्किल्स रह करके भी शायद सक्सेस नहीं हो पाती हैं। आपके अंदर बहुत सारे देखोगे, बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को आप देखो, बहुत सारे, देयर आर सो मेनी पीपल आई हैव सीन हु आर वेरी टैलेंटेड बट दे आर नॉट सक्सेसफुल। टैलेंट रहते हुए वो सक्सेसफुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं से वो सेल्स नहीं कर पा रहे हैं, सेल नहीं कर पा रहे हैं। अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को बेकार है उनके लिए रखे हैं, रख कर क्या करेंगे? एज वेल एज आइडियाज़। भाई आपके अंदर बहुत अच्छी आइडियाज है, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, आप उसको यूटिलाइज ही नहीं करोगे, आते रहेंगे, चले जाए, खत्म हो जाएगा, क्या फ़ायदा? कुछ नहीं।
तो वी नीड टू यूटिलाइज। हमारे अंदर कोई भी स्किल्स है, कोई टैलेंट है, तो उसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए। और अगर हम उसको मनी में कन्वर्ट कर पाते हैं तो फिर भी आप सक्सेसफुल। अगर हम नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं हम मनी में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे, अपने अच्छे आइडियाज़ हैं, टैलेंट हैं, स्किल्स हैं, सब कुछ तो बेकार है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो सकता है आपको मिल जाए, आप मतलब एक अच्छे सिंगर हो और आप पहाड़ पे जाकर बैठकर गाना गाते हो ठीक है, तो हो सकता है आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल जाए, आप खुद गा रहे हो, खुद सुन रहे हो, फिर भी जीने के लिए तो कुछ चाहिए होगा। हो सकते हैं खुद को आप सेटिस्फाई कर ले रहे हो कि हमें दुनिया को नहीं दिखाना है अपनी स्किल को, ठीक। लेकिन अगर आपके अंदर वो स्किल है, अगर वो दुनिया को दिखा लेते हो और उससे आप उससे अर्निंग भी कर लेते हो, पैसे में उसको कन्वर्ट कर लेते हो उस स्किल को, तो शायद आप सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक। तो हमें अपने सॉफ्ट स्किल्स को क्या करना है, डेवलप करना है। हमारे अंदर जितने भी सॉफ्ट स्किल्स हमने बात किया, इसमें से जो भी स्किल्स हमारे अंदर हैं, ठीक है, जो नहीं है उसको फोकस करना है, उसको क्या करना है, डेवलप करना है। बहुत बड़ी मतलब आसान चीज़ ये है कि सॉफ्ट स्किल्स, जो भी सॉफ्ट स्किल्स हैं, जितने भी मैंने अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये सारी चीज़ें लर्नेबल, ट्रेनेबल हैं। इसमें कोई भी ऐसा सॉफ्ट स्किल्स नहीं है जो कि सीखा न जा सकता हो। इसको क्या किया जा सकता है, सीखा जा सकता है बहुत आसानी से। तो वी नीड टू लर्न इट, ठीक। तो सीख सकते हैं। अब सीखने के लिए क्या चाहिए, नहीं सीखने के लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस, इन्वायरमेंट, सबसे पहले क्या चाहिए, मनी नहीं, थर्ड लेवल होना चाहिए सिर्फ। सबसे पहले क्या चाहिए हाँ, कोई भी चीज़ सीखने के लिए इनिशिएटिव कहाँ से आएगा, वो सर किसी भी चीज को समथिंग नॉलेज होना चाहिए उससे रिलेटेड। शुरुआत कहाँ से होएगी, रिक्वायरमेंट कहाँ से बनेगा, नीड कैसे होएगी, पता चलना चाहिए वो कमी है। एक वर्ड है, मैं चाह रहा हूँ वो वर्ड आप बोलो। मैं और हिंट दूंगा तो बोल दोगे, मैं हिंट नहीं देना चाह रहा हूँ, आप चाहता हूँ कि आप खुद से वो वर्ड निकालो। कहाँ से सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ है, सेल्फ मोटिवेशन, सब ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग हो सकता है। बताओ सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ है, जब तक वो चीज़ नहीं होगी तब तक नथिंग कैन बी लर्न, कुछ नहीं सीख सकते। लर्न तो दूर है, आप शायद कोई स्टेप नहीं लोगे, आपके पास चाहे जितने भी रिसोर्सेज रहें, चाहे कुछ भी रहे, लेकिन अगर वो चीज़ आपके अंदर नहीं है, किसी चीज़ को करने की इच्छा, यस, उसको इंग्लिश में क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी भी बात कीजिए, उससे भी और बढ़िया वर्ड एक है, विलिंगनेस, ग्रीट। हाँ, जब आपके अंदर विलिंगनेस होगा तो आप वे ढूंढोगे, आप रिसोर्स ढूंढोगे, आप ट्रेनर ढूंढोगे, आपको वो चीज़ कहाँ मिलेगा ये आप ढूंढोगे, सर्च करोगे, एंड वॉट एवर यू विल सर्च यू विल फाइंड। और अगर आपके अंदर विलिंगनेस नहीं है तो लाख आपके पास सारे रिसोर्सेज हों, ट्रेनर हो, बुक हो, नॉलेज के भंडार सब कुछ हो, आप नहीं सीखोगे। आप देखो कोई एक व्यक्ति जो लाइब्रेरी में बैठ कर के लाइब्रेरियन है, उसके पास दुनिया भर की नॉलेज भरी किताबें रहती हैं, लेकिन वो उसमें से कितनी नॉलेज गेन करता है, कुछ नहीं, शायद कुछ नहीं। उसके पास दुनिया भर की रिसोर्सेज हैं, अच्छी से अच्छी किताबों का भंडार उसके पास है, दिन भर लेकर पढ़े, घर भी ले जाकर पढ़े, दूसरे दिन लाकर रख दे, लेकिन शायद वो नहीं करता ऐसा। क्यों, वाई डज ही नॉट डू इट, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ नहीं है। क्या नहीं है, विलिंगनेस। सर विलिंगनेस के लिए कोई सिनोनिम्स हो, एक आध दो, दूसरा सिंपलीफिकेशन वर्ड, सिंपलीफाई करिए। विलिंगनेस को हम हिंदी में इच्छा, डिजायर, डिजायर कर लो। विलिंगनेस थोड़ा उसका स्ट्रांग फॉर्म है, डिजायर एक सिंपल फॉर्म है। सिंपल फॉर्म को जब हमारी स्ट्रांग डिजायर होती है तो उसको हम विलिंगनेस कहते हैं। डिजायर्स जैसे आती हैं, जैसे हमें प्यास लगी, मान लो पानी पीने की इच्छा हो रही, तो इट्स माई डिजायर, या मान लो डिजायर तो ये तो नीड है,
अभी डिजायर, नीड, वांट, ये सारी चीज़ों जो भी वर्ड्स हैं ना, इसमें भी थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं। जैसे मान लो कि मुझे मर्सिडीज मैंने कहीं देखा या कहीं मर्सिडीज, अच्छा इसमें से आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो मर्सिडीज में बैठे हों? नथिंग कोई हियर। नहीं। BMW में, ऑडी में, कोई नहीं बैठा है। देखे हैं कितने लोगों ने मर्सिडीज देखा है? अच्छा, बाकी लोगों देखे नहीं। ऑनलाइन देखे हो कि ऑफलाइन? ऑफलाइन, नजदीक से ऑफलाइन मर्सिडीज। तो मैं ये बोल रहा हूँ मर्सिडीज, मर्सिडीज आप देखे हो, चाहते हो मर्सिडीज कि आपके पास भी एक मर्सिडीज हो? सर नहीं चाहते हो तो नहीं चाहती है। चाहते हो कि हमारे पास भी एक मर्सिडीज हो? बताओ कौन है इसमें से, कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे पास एक मर्सिडीज हो? मतलब आज नहीं, फ्यूचर में 2 4 5 साल बाद, 10 साल बाद, मतलब मुझे भी अपने लाइफ में मेरे पास एक बार मर्सिडीज हो। ये कितने लोग इसमें से आप चाहते हो? कोई नहीं चाहता है। नो वन। अगर कोई नहीं चाहता है तो इसका मतलब कि आपके अंदर ये इसकी डिजायर नहीं है। ठीक, अच्छा चलो मान लेते हैं कि मर्सिडीज नहीं चाहते, ठीक है। एक कार चाहते हो कि नहीं? ठीक है, कार कोई भी हो, मारुति 800 हो, ऑल्टो कोई भी हो, इवन टाटा नैनो भी हो चलेगी, लेकिन कार चाहिए। तो कार की क्या है? डिजायर है। कुछ लोगों के अंदर शायद कार की भी डिजायर ना हो, वो क्या है, स्कूटी भी चलेगा, बाइक भी चलेगा। कार में बहुत घुटन होती है ना। बाइक सही है, बाइक में ओपन बैठते हैं, खुला रहता है, वो सही है। तो बाइक की इच्छा होगी, डिजायर होगा, बाइक तो होगा तो उसकी डिजायर नहीं होगी। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, मोस्टली हमारे पास उस चीज़ की कभी कभी डिजायर होती है। तो डिजायर देखो, हमने कहीं से देखा, कहीं से हमारे माइंड में आया, किसी और को देख लिया, कहीं नेट पे देखा, कुछ भी चीज़ें कहीं ना कहीं से हमारे माइंड ने उसको परसीव किया, तो उस चीज़ की डिजायर बन जाती है। ठीक है, बार बार अगर हम उस चीज़ को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, देखने के बाद उसके बारे में हम सोचने भी लगे, तो वहाँ से ना विलिंगनेस क्रिएट हो जाती है। हम बार बार अगर आप देखो मर्सिडीज देखो रोज़, ठीक है, तो शायद हो सकता है कुछ दिन के बाद आपके अंदर मर्सिडीज की चाहत, डिजायर, विलिंगनेस क्रिएट हो जाएगी। और जब वो क्रिएट हो जाएगी तो आप उसको पाने की कोशिश करोगे, और जब आप पाने की कोशिश करोगे तब उसके लिए आप स्ट्रेटजी बनाओगे, आप सोचोगे, दिमाग दौड़ाओगे, कैसे पा सकते हैं, कहाँ से पा सकते हैं, क्या हम कैसे खरीद सकते हैं, कितने की आएगी, कहाँ मिलती है, क्या होता है, सब कुछ। कितने प्राइस की आती होगी अच्छा मर्सिडीज? 50-60 हज़ार नहीं, 50-60 लाख। चलो ठीक है, तो एक आइडिया लगाओगे कि कितने की आती होगी। ठीक है, 50-60 लाख सही है, और कम में भी आ जाती है। 40 लाख से लेकर फिर करोड़ों तक, 1-2 करोड़ तक आती है। ठीक है, उससे भी बहुत सारी कॉस्टली कार्स हैं। तो जब आपके अंदर उसकी विलिंगनेस होगी तो आप शायद सर्च करोगे प्राइस कितने का है। सर्च करके प्राइस पता कर पाना कोई बहुत कठिन काम तो नहीं है। तुरंत आप अभी भी आज गूगल पर डालोगे मर्सिडीज स्टार्टिंग प्राइस शायद 2 मिनट में आपके सामने आ जाएगा कि ये मॉडल इतने का, ये मॉडल से इतने का, स्टार्टिंग सब कुछ आ जाएगा। तो बहुत टफ काम तो नहीं, लेकिन कभी ढूंढे नहीं, आज तक किसी ने सर्च नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, कहीं ना कहीं से उसकी कोई विलिंगनेस नहीं थी, कोई डिजायर नहीं थी। लेकिन जब डिजायर होगी, जब नीड होगी, तो उसके बाद उसको सर्च करोगे तो पाओगे। तो वैसे ही जैसे हम जब तक हमारे अंदर किसी चीज़ को लेकर विलिंगनेस नहीं होती है, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। अब जहाँ हमारे अंदर विलिंगनेस हो जाती है तो हम उसको सोचते हैं, फिर हम उसको ढूंढते हैं कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। जैसे बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है। देयर आर सम पीपल इन दिस क्लास हु आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, बट देयर आर सम पीपल, अब पता नहीं मुझे है कि नहीं है, लेकिन इस क्लास के बाहर भी ले रहे हैं दुनिया, अभी हम कॉलेज को ले रहे हैं। चलो, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हु आर नॉट वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। है कि नहीं है ऐसे लोग? सर मेरा खुद ही नहीं है। तो ऐसे लोग अगर हैं जिनके अंदर की इंग्लिश जिनकी फ्लुएंट नहीं है, तो पहली बात तो फ्लुएंट नहीं है तो क्यों नहीं है?
क्यों नहीं है, उसका अगर हम रीजन ढूंढें क्यों नहीं है। आपकी इंग्लिश अगर फ्लुएंट नहीं है, चलिए आप बताइए व्हाई इज योर इंग्लिश नॉट सो। लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो हो सकती थी, क्यों नहीं किया? क्या आप प्रैक्टिस कर नहीं सकते थे? They hesitate. हेजिटेशन खत्म हो जाता अगर आप प्रैक्टिस करते तो। अगर ये चाहते प्रैक्टिस करते तो क्या हेजिटेशन खत्म नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन किए क्यों नहीं? Willingness नहीं. विलिंगनेस नहीं थी। और जिस दिन Yes, विलिंगनेस exactly. हो जाएगी इंग्लिश सीखने की, कुछ दिन के अंदर आप इंग्लिश सीख लेंगे एंड यू विल बी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। एक अभी मतलब मैं जानता, पता नहीं आप लोग जानते हो कि नहीं, सुहानी शाह यस मैजिशियन। आजकल बड़ा चर्चे में, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। मैजिशियन ना, उसको मैजिशियन ना कह करके बल्कि आप वो कहो मेंटलिस्ट। सुहानी शाह कितने तक पढ़ी है? कितने तक पढ़ी है? कुछ भी नहीं, पढ़ी ही नहीं है, पढ़ी है थोड़ी है 5 तक। हमें लगता है सर झूठ बोलती है, पढ़ी नहीं है। बस फेम होने के लिए, फेमस होने के लिए। ऐसा नहीं है। क्योंकि जो झूठ नहीं बोल सकता इतना बड़ा, जैसे उसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 1 तक स्कूल गई है, 1 तक। यस 1 के बाद दूसरी दर्जा में नहीं पढ़ी, दूसरी कक्षा में नहीं पढ़ी है, लेकिन शी इज स्पीकिंग वेरी फ्लुएंट इंग्लिश। आप उसकी इंग्लिश को देख करके नहीं कर सकते हो कि वो कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं है। इसीलिए सर मैं बोल रहा हूँ कि डाउट हो रहा है। लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, वो कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं है। अगर मान लेते हैं हम कि पढ़ी भी होगी 2, 4, 5 तक भी, तो लेकिन उसने जो स्किल गेन किया है, जो इंग्लिश की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी मेंटलिस्ट की या उसके मैजिशियन की नहीं कर रहा हूँ। यस आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, कि वो कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं है, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़ी है। ठीक, अच्छा छोड़ दो उसको, सुहानी शाह को छोड़ देते हैं, वो दूर की है, पता नहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, नहीं जानते हो। ठीक है, मुझे बताओ आपके सामने मैं हूँ, व्हाट डू यू थिंक दैट आई एम फ्रॉम कॉन्वेंट स्कूल? नो। मैं कहाँ से पढ़ा हूँ? यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड से। किस स्कूल से? हाई स्कूल इंटर कहाँ से किया हूँ? सोनभद्र से। हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट में कहाँ से किया हूँ? सोनभद्र से। विच स्कूल कॉलेज? श्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज, मधुपुर मिर्जा, मधुपुर सोनभद्र। कहाँ है? मधुपुर में है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। मेरे घर से कितना दूर था? नहीं, मेरा घर मधुपुर, मेरा जो होम टाउन है, माय होम टाउन इज 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम मेन मार्केट ऑफ मधुपुर। मधुपुर मेन मार्केट से 5-6 किलोमीटर अंदर एक गांव है, उस गांव में मेरा घर। तो 5-6 किलोमीटर वो पक्की रोड भी नहीं। जब मैं जाता था पढ़ने हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट में, तो वो जो मड वाली रोड होती थी ना, कच्ची, जब साइकिल से जाते थे तो क्या होता था, उसमें मिट्टी पकड़ता था, तो एक छोटा सा लकड़ी लेते थे, ले करके रखते थे, और वो मिट्टी उसमें पकड़ता था, तो उसको हम लोग छुड़ाते थे, और उसके बाद जो चप्पल पहनते थे तो वो क्या करते थे, उठा करके उसके साइकिल के करियर में रख देते थे, और बैग भी उसी पर रख देते थे, और थोड़ा दूर चलते थे, फिर मिट्टी छुड़ाते थे। तो आप वो सोच सकते हो कि उस माहौल से, वॉज देयर द इन्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश एट माई होम? Was there the environment of English in my school or college? Do you expect that in that scenario, will the teacher speak in English? Teacher क्या इंग्लिश में बात करते रहे होंगे? Never. Till 12th, even the teachers were not speaking Hindi. हिंदी में भी बात नहीं करते थे. They used to talk in भोजपुरी. ठीक है, और सर जी भी नहीं कहते थे, गुरु जी। द वर्ड विच वी यूज टू डू दैट वाज गुरु जी, एंड हाँ, मास्टर जी भी नहीं, गुरु जी। एंड व्हाट द वर्ड दे यूज टू इंडिकेटर्स, हम लोगों के लिए वो क्या, कौन सा वर्ड यूज करते थे? से नहीं, बचवा। ठीक है,
तो इंग्लिश से कितना दूर का रिलेशन था। आप जरा उसको इमेजिन करो कि कितना दूर दूर का कोई रिश्ता था इंग्लिश से। कहीं से कोई दूर दूर का इंग्लिश सोच ही नहीं सकते थे, बोलना तो बड़ी दूर की बात है। नहीं था भाई, एकदम नहीं था। बट नाउ I have been working as an English and soft skills trainer. I did my post graduation in English and I have been just earning my bread and butter through English, through my English. तो जहाँ जिस माहौल में हम कभी सोच ही नहीं सकते थे इंग्लिश की बात, उसके बाद अगर मैं इंग्लिश से ही माई मेन सोर्स ऑफ अर्निंग वॉज इंग्लिश। मेरी कौन सी, मेरे अंदर जितनी भी क्वालिटी चाहे रही होगी, चाहे हार्ड स्किल्स, फरसा चलाने आता रहा होगा, खेत जोतने आता रहा होगा, गाय चराने आता था खेती से रिलेटेड बहुत सारे स्किल्स थे जिसको हार्ड स्किल्स कह सकते हैं, वो सारे स्किल्स थे। उसने मुझे कोई काम नहीं दिया जिससे मुझे कोई अर्निंग हो सके। ठीक, मुझे पैसा अर्न करने का सोर्स किससे मिला? इंग्लिश से, सॉफ्ट स्किल्स से। तो वो हार्ड स्किल्स मेरी कहीं यूज नहीं हुई, जो सॉफ्ट स्किल्स यूज हुआ, जिसका मेरे बचपन में मेरे कहीं से कोई रिलेशन नहीं था। हाउ डिड आई लर्न दैट? क्या रहा होगा? भले इंग्लिश में ना हो, किसी और लैंग्वेज में। तो एजुकेशन रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एजुकेशन नहीं था, लेकिन इंग्लिश का कोई रिलेशन नहीं था ना। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे थे विलिंगनेस की। मेरे अंदर एक विलिंगनेस थी और वो भी बचपन से नहीं थी। ऐसा नहीं है कि मैं जब 5 में पढ़ता था तो मेरी ये विलिंगनेस मेरे अंदर रही हो कि मैं फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाऊँ। क्या रही होगी? नहीं रही होगी। इट केम व्हेन आई वेंट इन ग्रेजुएशन। 12th पास करने के बाद कभी मेरे अंदर वो आइडियाज आया है, वो विलिंगनेस आया कि आई मस्ट लर्न इंग्लिश, आई मस्ट बी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। तो उस टाइम यही लगा होगा कि ये बड़ा डिफिकल्ट है, ये कैसे होगा, हाउ इज इट पॉसिबल, आई हैव नेवर स्पोकन इंग्लिश और मेरी इंग्लिश तो बहुत वीक है, हाउ कैन आई बिकम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं लग रहा था। बट वो जो विलिंगनेस थी ना, वो विलिंगनेस गेव मी पावर, उसने मुझे मजबूर किया सीखने के लिए। तो कोई भी लर्निंग की जो शुरुआत होती है, अब यहाँ पर हम इस पॉइंट पे आते हैं, इसके लिए इतनी देर तक जो भी बात हुई उसका मेन ये था, तथ्य पे आते हैं कि एनी लर्निंग स्टार्ट्स विथ विलिंगनेस। इफ देयर इज विलिंगनेस, आप एक चीज सुने भी होंगे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ठीक, एंड वेयर देयर इज नो विल देयर इज एन एक्सक्यूज। ये अपने से बना दिए हैं, वेयर देयर इज नो विल देयर इज ऑलवेज एन एक्सक्यूज। मतलब हमारे अंदर किसी चीज़ को करने की अगर चाहत है तो रास्ता मिल जाता है, और अगर चाहत नहीं है तो बहाना न करने के लिए बहाना भी मिल जाता है। दोनों अवेलेबल है, आप पे डिपेंड करता है आप क्या ढूंढते हैं। अगर आपके अंदर चाहत है तो आपको करने का तरीका मिलेगा, अगर चाहत नहीं है तो बहाना मिल जाएगा। ठीक, तो विलिंगनेस से स्टार्ट होती है लर्निंग। तो अगर कुछ भी चीज़ सीखना है तो सबसे पहले द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज विलिंगनेस। यू नीड टू हैव द विलिंगनेस। ठीक, अब विलिंगनेस कहाँ से आएगी? अच्छा, ये हम लोग जो भी बात कर रहे हैं अभी, कुछ भी चीज़ें, तो इन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं से रिलेट कर पा रहे हो, या आपको लग रहा है ये सारी कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं से कुछ आपके काम की हैं या फालतू हैं? कुछ फालतू तो नहीं जा रहे हैं हम लोग? नो सर, सही है। अगर ऐसा कहीं लगे कि हम यहाँ कहीं फालतू बात कर रहे हैं, इससे क्या लेना देना तो हमें बता देना, क्योंकि हो सकता है कभी जा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ही जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन अभी तक मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हम जो भी चीज़ें बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से उसका कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिलेशन है, फालतू तो नहीं बात कर रहे ना। तो ये विलिंगनेस से ही लर्निंग की स्टार्टिंग है। अब विलिंगनेस कैसे आता है, यहाँ पर हमें ये सोचना है। तो हु कैन टेल मी कि हाउ डज द विलिंगनेस कम?
विलिंगनेस की शुरुआत कहाँ से होती है? ये इच्छा की। बताओ भाई, विलिंगनेस की कहाँ से स्टार्टिंग होती है? विलिंगनेस कहाँ से आती है? सेल्फ रियलाइजेशन। विलिंगनेस कहाँ से आती है बताइए? पता है उस चीज़ के बारे में कि वो क्या वो समाज में मतलब उसकी ज़रूरत है कि जो हम सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सर ये मायने रखता है ये चीज़ कि वो समाज में उस चीज़ का ज़रूरत है, फिर देखेंगे क्या हम वो चीज़ सीख सकते हैं, क्या इच्छा भी कहीं ना कहीं मायने रखती है। और फिर मोटिवेशन फैक्टर तो सर मनी ही है कि अगर मनी तो सबको चाहिए, ठीक है। जो एक लेबर भी होता है उसको भी मनी चाहिए होता है। वो दिन भर का जाता है, 250, 300, 400, 500 रुपये जो भी अर्न करता है, सुबह में जाएगा काम करेगा, शाम को उसको मजदूरी मिल जाती है, ठीक। उसको भी चाहिए, वो भी सेटिस्फाइड हो जाता है। जो लोग जॉब भी कर रहे हैं उनको चाहे 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए महीने की सैलरी मिले, महीना हुआ उनको भी पैसा आ रहा है, तो वो तो सबको मनी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो क्या ये विलिंगनेस आपको जो है, इच्छा जो आपकी बता रहे हैं, ये कहाँ से आती है? ये मनी से, तो मनी की ये हाँ, तो आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, लेकिन उसको और अच्छे से। आपकी विलिंगनेस थी इंग्लिश सीखने की क्योंकि आप खुद को एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाला देखना चाह रहे थे। इट्स नॉट ऑलवेज मनी। हाँ, क्योंकि हम पर्सनालिटी ग्रूमिंग करते हैं, उसमें कहीं मनी का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बट शायद हम खुद को एक बेटर पर्सनालिटी में देखना चाहते हैं, इसलिए ग्रूमिंग करते हैं। वेरी वेल। इसकी जो स्टार्टिंग ये कहाँ से आता है, ये चीज़ें, ठीक, ये विलिंगनेस कहाँ से आता है, इसके लिए अगर हम कहें, ये हमारी सोच से भी आता है। कहीं ना कहीं से ये कहाँ से आता है? हमारी सोच से। सेल्फ एनालिसिस कह सकते हैं सर। कि हम खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। और देखा जाए, अगर हम देखें तो इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, वॉट एवर थिंग्स, वॉट एवर ऑब्जेक्ट्स, वॉट एवर कुछ भी चीज़ें, आप कुछ भी ले लो, चाहे आप सुई से लेकर के फ़ोन से लेकर जहाज़ से, कुछ भी रॉकेट से लेकर कुछ भी चीज़ ले लो, वो सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, वो सभी चीज़ें किसी न किसी के सोच की परिणाम, इंटेलेक्ट, बुद्धि का रिजल्ट। Do you agree with this? हर चीज़ किसी न किसी के सोच की परिणाम है। किसी ने मोबाइल के बारे में सोचा होगा कि कुछ ऐसा डिवाइस होना चाहिए जिससे कि दूर भी बैठ कर के हम बात कर सकें, तो टेलीफोन बना दिया होगा। फिर उसके बाद उसमें भी बहुत झंझट रहता है, वो तो एक ही जगह रहेगा, तार रहेगा, कुछ ऐसा रहना कि जिसको हम कहीं भी लेके भी जा सकें। फिर बड़ा सा कुछ बना होगा, फिर उसके बाद कुछ ऐसा होगा कि छोटा रहे, पॉकेट में रख लें। तो ऐसे ऐसे करके किसी न किसी ने उसको सोचा होगा। तो ये सोच से जब सोचा होगा, कुछ उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया होगा, जिसके भी दिमाग में कोई भी चीज़, तो हमारे अंदर क्या होता है कि कुछ आइडिया आता है। जब हम आइडिया आएगा तो हम उसके प्रति अगर पॉजिटिव सोचें या निगेटिव सोचें। अगर हमारी सोच पॉजिटिव है तो हम सोचेंगे हाँ यार हो सकता है। निगेटिव है सोच है हमारी, चलिए नहीं होगा यार, क्या जरूरत है, लाइफ चल तो रही है क्या ज़रूरत है, चल तो रही है भाई। हमें इंग्लिश नहीं भी आ रही तो क्या हुआ, लाइफ तो चल ही रही है, जॉब तो मिलेगी ही। ऐसा तो नहीं कि जॉब नहीं मिलेगी भाई। अगर हमने बीटेक कर लिया तो जॉब तो मिलेगी ही। ये हो सकता है कि अच्छी कंपनी में ना मिले, हो सकता है टॉप 10 कंपनी में ना मिले, लेकिन उससे नीचे वाले में तो मिलेगी। सैकड़ों हजारों कंपनियां हैं। हो सकता है कि हमें 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख का पैकेज ना मिले, 1 लाख का, 2 लाख का तो मिलेगा मिलेगा ना। कुछ लोग अगर ये भी सोचते हैं कि नहीं वो भी नहीं मिलेगा, अगर हम इंग्लिश अच्छी नहीं करेंगे तो शायद हमको 10 लाख तो 1 लाख का भी पैकेज मिले, तो ऐसे भी कुछ लोग हो सकता है। तो देखिए होता क्या कि हमारी सोच क्या है। अगर हमारी सोच है कुछ बड़ी, तो जो भी चीज़ें हमारे पास, जो भी चीज़ें हमें ऐसा दिखेगा कि नहीं इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की नीड है, ठीक है, हम अगर उसको पॉजिटिवली लेंगे तो हम उसमें तरीका ढूंढेंगे कि अगर हम ये चीज़ दूर कर लेते हैं, ये कर लेते हैं तो ये हो सकता है। और जो निगेटिव वाले पर्सन होंगे वो कहेंगे नहीं यार ये नहीं होगा, ये बहुत टफ है, ये छोड़ो, ये जैसे है वैसे ही ठीक है।
थोड़ा कम भी मिलेगा तो क्या हुआ, जी लेंगे। अगर हमें 20,000 रुपये महीने की भी जॉब मिल जाती है, 10,000 की भी, तो हम जी खा लेंगे, ठीक है, क्या जरूरत है। और कुछ लोग होंगे अगर उनको 50,000 का भी पैकेज मिला है तो कहीं यार बहुत कम है, 6 लाख का पैकेज बहुत कम है, हमें कहाँ से 10-12 लाख का भी पैकेज। यार देखो, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, और इसी तरीके से ही तो एक और डायरेक्शन कर सकते हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव या तो डिस्ट्रक्टिव।